कमिटमेंट है विद द कस्टमर, अग्रीमेंट है विद द कस्टमर, उस टाइम पे पहुंचना है. Full, whatever quantity has been ordered has to reach the customer. Okay, उसमें से कुछ कमी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. It is not full if the quality of some of the material that you are supplying is not correct. Okay, is not as per expectation. That is the point number 3. तो क्या हो गया? Time, quantity, quality. What is the fourth one? जो मटेरियल ले जाना है, मटेरियल लेके उनको डिलीवर करना है, उसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए. All the documents are present and all the documents are correct. Okay, then it is in full. On time, quantity, quality, documentation is 100% and 100% correct. गलती नहीं है उसमें, and it is full. अगर आपने डॉक्यूमेंट दिए, इनवॉइस किया हुआ है, इनवॉइस में आपने गलती कर दी है, ओके, आपने डिलीवर किया 150 लेकिन इनवॉइस किया 149 के लिए, फिर भी योर कस्टमर कैन नॉट इन्वर्ट इट इनटू देयर इन्वेंटरी एंड द कस्टमर कैन नॉट यूज इट. मटेरियल वहां पर पहुंचने में, मटेरियल फुल क्वालिटी अच्छा रहने में, क्वांटिटी एक पीस कमी नहीं है, क्वांटिटी भी सही होने पे कोई फायदा नहीं है. मटेरियल इन्वर्ट नहीं कर सकते हैं because they cannot take it into their inventory, they cannot consume that inventory, they cannot sell that inventory because there was one error in the documentation. Okay, so on time in full is an extremely important KPI. Video चालू नहीं था. Okay, so अलग-अलग इंडस्ट्री का अलग-अलग KPI भी होते हैं, so please go ahead and go looking for it. अभी समझ आया what is OTIF? Yes sir. Yes sir. उस लिस्ट में नहीं है, please add OTIF to your notes. Please also talk about case fill rate. Okay. There is something called as a case fill rate. I'm not going to explain what case fill rate is now. Case fill rate is typically used in FMCG industry. And why it is case fill rate? Because they supply cartons. Okay, soap हो, soap powder हो, या कुछ भी हो, FMCG से जो भी material आते हैं, तो all of that is normally in cartons. These are called as cases. कितने केस भरे उसको साफ करते, उसको ट्रैक करते. So case fill rate is an important KPI, but I want you to go and understand what a case fill rate is. I will be asking that question somewhere. Please be ready to build your knowledge and answer the question. ठीक है. Okay, let's go back to what were we working on. Acha, did anybody look at what warehouse versus go down? Any further questions? Any further better information, definition? No sir. सोचे थे उसके बारे में? नहीं कुछ सोचा. Very good. Okay. So yesterday we were talking about warehouses. We started talking about warehouses. We started talking about the difference between a warehouse and a godown. We identified that broadly speaking, very broadly. And the material is kept in an organized, in a systematic way with the way processes in place, with specific identified locations in space, etc., etc. You could classify it as a warehouse, whereas a godown is just a storage sphere for material. And things are very manual. There is not much of a control in a godown. Okay. We also talked about what is warehousing and why you need a warehousing. Let us look at different types of warehousing today. There are different ways in which warehouses can be classified.
one of the ways in which we can classify the warehouses is by ownership and usage. इस पे क्या आएगी? प्राइवेट वेयरहाउसेस. तो प्राइवेट वेयरहाउस क्या होता है कि आप ही एक वेयरहाउस बना सकते हैं अगर आपके पास यू हैव लैंड. आप वेयरहाउस बना के उसको रेंटल पे दे सकते हो, लीज पे दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. तो उसको प्राइवेट वेयरहाउस बोला जाता है. पब्लिक वेयरहाउसेस गवर्नमेंट ने उसको बना रखे. सॉरी, गलत बोल दिया. प्राइवेट वेयरहाउसेस आर ऑपरेटेड बाय लार्ज इंडस्ट्रीज अपने आप के लिए. There is nothing about it is not rented out to public. It is for their own personal, their own use. अपने स्पेस पे अपने लिए वेयरहाउस बनाए, अपना यूज करते हैं. पब्लिक वेयरहाउस क्या है कि जहाँ पर गवर्नमेंट या कोई भी वेयरहाउस बनाए और उसको देते हैं रेंटल पे, लीज पे, कैसे भी देते हैं. गवर्नमेंट का वेयरहाउस कुछ देखे हैं आप? There's a very common warehouse that you find in many cities in this country. Large warehouses. देखे हुए? Sir, No, sir. yes, sir. A clock room. I'm sorry, I'm not able to see. Who said? Sir, Vishal, sir. Vishal. Good. Tell me, Vishal. That's an interesting example. I've never thought of it. मैं कभी उसके बारे में ऐसे सोचा नहीं है. क्लोक रूम बोला ना आपने? Yes, sir. And वहाँ पे goods house भी होता है, clock room. तो ये क्लोक रूम कहाँ दिखता है नॉर्मली? ये सर रेलवे स्टेशन में. Railway station. Big railway station. Big railway station में. Why do you call it a warehouse? सर वहाँ पे रेलवे के सामान होते हैं ना. आप गलत नहीं बोले. तो बट मैं वही बता रहा हूँ सर, इन्वेंट्री रहती है ना रेलवे की, कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं या फिर डिलीवरी जो करनी रहती है, जैसे कि कहीं जाना रहता है रेलवे से, तो वहीं पे रखा जाता है सर वो सामान वगैरह सब कुछ. तो क्लोक रूम टिपिकली अपने पैसेंजर्स का जो सामान है उसको रखने के लिए जगह बना के देते हैं रेलवे में, राइट? तो बट हाँ, इट्स एन इन ट्रांसिट वेयरहाउस बोल सकते हैं. इन ट्रांसिट मेरे हिसाब से आई विल कीप कॉलिंग इट एज अ, बट देन उसमें काफी सिस्टम है. कोई भी जगह है, कोई मटेरियल रखने का उसका अपना टोकन रहता है, उस हिसाब से मटेरियल को रखते हैं और आप अपने रिसीट दिखाए तो वो फटाफट जाके लेके आके दे देते हैं. सो इट्स एक्चुअली अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम. ओके, so not many people use a cloakroom, not many people know a cloakroom, but it's a very useful facility, but interesting. हाँ, so but अगर large scale में बड़े साइज में देखना है तो कुछ आपने देखे हैं? There are in many places आप देखे होंगे, there are these big godowns जिसके ऊपर FCI लिखा है, FCI लिखा रहता है. What is that? FCI is Food Corporation of India. Food Corporation of India. उनका गोडाउन रहता है काफी बड़ा. So those are government and they're used by the government. Okay. But they also FCI का कोई गोडाउन होता है, वो वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का गोडाउन होता है, वो उनका अगर सरप्लस पैसे है तो कभी रेंटल भी दे देते हैं बाकी लोग. So private warehouse होते हैं, public warehouses होते हैं. Okay. Most of the public warehouses are in the sense like done by industry people, अपने लोगों का, अपने पर्सनल लोग, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है. बॉन्डेड वेयरहाउसेस, ये बॉन्डेड वेयरहाउस ऐसा है कि नियर द एयरपोर्ट के पास या सी पोर्ट के पास कहीं भी हो सकता है. एंड दे आर स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दीज आर अंडर लॉक एंड की. एंड ये क्या है कि कस्टम्स बॉन्डेड होते हैं, जिसके अंदर जो मटेरियल है उसका कस्टम्स क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ है. सो स्पेशल परमिशन लेके, जैसे CFS में कभी एक पार्ट को they make it into a bonded warehouse. CFS क्या होता है? Remember what CFS is? CFS. Shipping में we talked about CFS. कैश फिल रेट नहीं, CFR होता है ना. CFR होता है. अभी केस कंटेनर फ्राइट स्टेशन. Container freight station. तो some part of the container freight station can also be bonded warehouse, जिसके अंदर मटेरियल विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आप इंपोर्ट करके रख सकते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम.
पहले जब एक्साइज ड्यूटी का कहा जमाना था फॉर द जीएसटी केम, वी ऑल्सो हैड एक्साइज बॉन्डेड वेयरहाउस, बट अभी एक्साइज बॉन्डेड वेयरहाउस का काम नहीं है, तो जीएसटी आ गया है तो वो उसको निकाल दिया। बट अदरवाइज दिस इज बॉन्डेड वेयरहाउस। सो यूसेज के हिसाब से वो बॉन्डेड वेयरहाउस बन जाता है, प्राइवेट वेयरहाउस है, पब्लिक वेयरहाउस है। There are different ways you can classify it. Because when you're going and looking for a warehouse, how do you look for a warehouse? So that after a couple of slides, we will talk about it. Type of construction. ये क्या है कि इस पे कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, कोई ऐसे मटेरियल है जो मटेरियल खुला खुला रखे एरिया पे रखा जाता है, ओपन यार्ड है। ओके, बस उसमें मे बी समवेयर दे पुट सम कंक्रीट फ्लोरिंग, मे बी समवेयर वो बस खाली ग्राउंड रहता है, उस पे सामान रख देते हैं। जैसे आप अगर देखे होंगे तो स्टील के देखे होंगे, मेनी प्लेसेस यू विल सी स्टील बीइंग केप्ट आउटसाइड, स्टील रोल्स भी होंगे, स्टील शीट्स भी होते हैं, स्टील रॉड्स रहते हैं, बाहर रखते हैं ज्यादा। You also will see such cables. You will also see things like coal and other things kept in the open yard. Okay. कार्स वगैरह भी आता है तो उसको भी क्या है कि ओपन यार्ड पे रहते हैं, उसको कोई बड़ा सा एक शेड नहीं बनाते उसको। The other is covered, just simple covered. Typically एक लेवल का होता है, हाइट ज्यादा कम जो भी है, कवर्ड वेयरहाउस है। कवर्ड में भी क्या है कि इसको कंस्ट्रक्शन ऐसे वर्टिकली भी बनाते हैं। इसमें क्या एक ही लेवल है, बस अंदर गया तो एक फ्लोर रहता है, क्लोज्ड है, अंदर अंदर सामान रखते हैं, इतने हाइट के लिए मटेरियल रख सकते हैं। इसमें क्या है कि इन दिस लास्ट पिक्चर दैट इज वर्टिकल आरसीसी बिल्डिंग के जो है, इसके अंदर क्या है कि यू कैन हैव इसके अंदर आपको ये होता है कि you can have multiple floors, so you have material stored in different floors. Many times medical equipment वगैरह, इसको instead of keeping it in this kind of things, and especially they have to be maintained in temperatures except उस ये ऐसे normal construction building आरसीसी बिल्डिंग के अंदर multiple floor पे रखते हैं। ऊपर नीचे जाने के लिए बड़े फ्राइट एलिवेटर्स होते हैं, लिफ्ट होते हैं, बड़े बड़े लिफ्ट होते हैं जो मटेरियल को ऊपर और नीचे ले जाते हैं और उसके अंदर स्टोर करते हैं। सो आप बाय ओनरशिप बोल सकते हैं, आप बाय कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, वेयरहाउस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाय पोजीशनिंग एंड यूज, स्टैंड अलोन, डेडिकेटेड। मैं चाहता हूं कि मेरा एक वेयरहाउस चाहिए जो खाली मेरे लिए चलेगा। Are you guys hearing? Hello. Yes, sir. Sir, Okay. similar to private. Similar to private, लेकिन private very correctly asked and a very good question. It is similar to private. Private में क्या है कि मैं अपने कंपनी के लिए मैं खुद का वेयरहाउस बना के मेरे अपने वेयरहाउस में मेरा ही सामान रखूंगा, वो अपना घर जैसे हो जाता है। तो इट इज माई पर्सनल, मैंने अपना वेयरहाउस बनाया। मैं आज के ज़माने में वो प्राइवेट वेयरहाउस की जो सिचुएशन है ना, वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि अभी क्या है कि nobody wants to invest that kind of money into a warehouse and all those things. तो प्राइवेट वेयरहाउस ज़्यादा। पहले क्या होता था कि पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में तो पीपल वेयर अपने ही ट्रक चलाते थे, लॉजिस्टिक्स के टाइम पे अपना ट्रक होता था, अपना उनका वेयरहाउस भी होता था। वो सब आजकल नहीं है। बट योर क्वेश्चन इज करेक्ट, इट इज लाइक अ प्राइवेट वेयरहाउस जहाँ पर एक ही कंपनी का या एक ही एंटिटी का माल रहता है, बट इन दिस केस इट इज अ लीज्ड और अ रेंटेड प्रॉपर्टी। स्टैंड अलोन एंड डेडिकेटेड। प्राइवेट वेयरहाउस भी स्टैंड अलोन डेडिकेटेड ही बोल सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। A private warehouse is definitely a standalone dedicated warehouse, whereas even other than that there can be others which are standalone dedicated also. जैसे मैं जब पहले नोकिया में था तो नोकिया हमारा एक पॉलिसी था। I was never happy with that policy, despite being the supply chain head for Nokia. I was never happy with that policy, but then as a company policy I could not do anything about it. Company policy का क्या था कि you will always have a dedicated warehouse. Okay. So that was the situation. So it brings in certain problems, but yes,
तो इस तरह से पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसको उसका ऑपोजिट क्या है? शेयर्ड वेयरहाउस। सो व्हाई इज अ शेयर्ड वेयरहाउस? शेयर्ड वेयरहाउस जो है कि वो बड़ा लोकेशन हो जाता है। एक ही वेयरहाउस के अंदर देयर आर मेनी कस्टमर्स, उनको बांट के दिया है कि ये इनका स्पेस है, इनका स्पेस है, ऐसे कभी कभी बांट के देते हैं, या वो भी नहीं रहता है, किसी का भी मटेरियल कहीं भी रह सकता है। दी ऑपरेटर ऑफ द वेयरहाउस, जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जो है, they know what is the where what material is and they will be able to pull it out for you. तो वेयरहाउस शेयर्ड हो सकता है, ठीक है। देखो पहले दुकान क्या होते थे? दुकान अलग अलग अपना अपना दुकान होते थे। देन इन अ मॉल, नाउ मॉल में क्या है कि the shops are there but it is in a shared space. Similarly in a shared warehouse everybody's material is there inside the same warehouse. Okay. So इसमें क्या होता है कि shared warehouse में the big advantage that happens is that because it is a warehouse service, logistic service provider who's a specialist in warehouse, who's operating it, वो वेयरहाउस का बहुत बढ़िया उनका जितना भी फैसिलिटीज होना चाहिए वो बनाते हैं। जैसे आपको एक पिक्चर में दिखता है, बड़ा वेयरहाउस है, हाइट काफी है, उसमें देर आर टिपिकली 6 हाई, यू नो कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 लेवल तक उसका मटेरियल रखने का रैकिंग बनता है, ठीक है। इतना लंबा हाइट बना देते हैं उसको टू मूव द मटेरियल, लिफ्ट द मटेरियल, कीप इट अराउंड। उसके फोर्कलिफ्ट ट्रक होते हैं, काफी बड़े मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो चाहिए वो रहता है। उसका टेक्नोलॉजी कैसे उसको ट्रैक करना है, कौन सा मटेरियल कहाँ है, उसको ट्रैक कैसे करें, वो सब करने के लिए भी टेक्नोलॉजी रखते हैं। और बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड फॉर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, ओके, बड़ा रहता है, लार्ज मटेरियल रहता है, तो वो उस पर क्या है कि आपका सेविंग्स काफी आता है। देखो अगर आपका नॉर्मली शेयर्ड वेयरहाउसिंग में क्या होता है कि इफ ड्यूरिंग द मंथ नॉर्मली आपका से 10,000 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए, ओके, और कभी कभी आपको बढ़ जाता है कि आपको 15,000 की जरूरत पड़ जाती है, मतलब 5,000 ज्यादा चाहिए स्पेस। आप जब अपना स्टैंड अलोन डेडिकेटेड वेयरहाउस बनाते हो तो आपको क्या है कि यू बिकम कंपेल्ड टू टेक दैट 15,000 वाला स्पेस, जो मोस्ट ऑफ द मंथ, मतलब महीने में ऑलमोस्ट लाइक 25 डेज के ऊपर वो 5,000 से ज्यादा स्पेस, स्क्वायर फीट स्पेस खाली रहता है, कोई काम का नहीं रहता है। लेकिन क्या है कि आप तो उसको किराया विराया तो भरते रहते हो। वैसे ना शेयर्ड वेयरहाउसिंग स्पेस क्या करोगे, आप बोलेगे कि मैं 10,000 का मैं ले लेता हूँ, जब मेरा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आता है वो उसका पर डे के बेसिस में आपसे ले लूंगा मैं, तो जितना भी स्क्वायर फीट में यूज करता हूँ एडिशनल एवरी 100 स्क्वायर फीट, ओके, तो उसका इट्स रेट पे पैसा दे दे। तो उस हिसाब से देखें तो व्हेन यू डू द कैलकुलेशंस यू विल फाइंड दैट इन अ शेयर्ड वेयरहाउसिंग यू विल स्पेंड मच लेसर। शेयर्ड वेयरहाउसिंग टेक्नोलॉजी वो वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर लाता है, okay? एंड इन ऑल्सो इन स्टैंड अलोन केस आपको डालना पड़ेगा मोस्ट लाइकली, या आप सर्विस प्रोवाइडर को लाने को बोलेंगे, then that guy will be asking you for a higher rate because खाली बस आपके लिए बनाना है, not for everybody. So shared warehouse, I am a very strong supporter of shared warehousing. I see a huge amount of advantages in going for shared warehousing. But there are many companies who have very specific reasons why they want to keep standalone warehousing. Each has their own requirement. Another thing is logistics park. इसमें क्या है कि there are multiple logistics facilities located inside the same area, within a space, same large area. आपका ऐसे टॉल वेयरहाउसेस हो सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल वेयरहाउसेस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना फैसिलिटी होता है। So all kinds of facilities are provided inside a very large space. Okay, उसको logistics park बोला जाता है। Many logistics parks are being built right now. वो logistics park का advantage ये भी होता है कि you can work with the railways and select, चलो हमें railway siding भी दे दे। So when whoever is setting up a logistics park will try to set up big warehousing facilities inside of different types.
We'll also try to bring in various transportation facilities inside of different size and different transportation facilities so that all kinds of things can happen inside the logistics park. By purpose, we can classify warehouses by their purpose also. What is purpose? Purpose ये होता है कि ambient warehouse. Ambient warehouse क्या है? Ambient warehouse ऐसा है कि जैसे ये warehouse है, it looks like an ambient, मतलब रूम नॉर्मल टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसी उतना ही अंदर का भी टेम्परेचर रहेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा क्योंकि उसका छत वगैरह है, रूफ, ऑल ऑफ दैट इज देयर, वेंटिलेशन इज देयर, बट नॉर्मल सब कुछ खुला रहता है, पर खुला मीनिंग द डोर्स आर ओपन, एवरीथिंग ओपन, तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर का फर्क नहीं रहता है. जो मटेरियल और मोस्ट ऑफ द मटेरियल 90% ऑफ द मटेरियल जो नॉर्मल टेम्परेचर में रखना चाहता है वो वाला इस वेयरहाउस में रख सकते हैं. तो आप अगर देखते हो एम्बिएंट वेयरहाउसेस, दीज आर काइंड ऑफ एम्बिएंट वेयरहाउसेस जिसके अंदर मोस्टली द वेयरहाउसेस आर एम्बिएंट, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाता है. देन देयर आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड. टेम्परेचर कंट्रोल्ड ये भी होता है कि there are things that have to be kept under certain particular temperature. For example, medicines. There are some medicines which have to be maintained within a temperature range of say 18 degrees to 24 degrees. So उनके लिए you have to give them a specific area and set the temperature of that at something like 22-23 degrees so that उसके अंदर ही वो रहेगा, उस टेम्परेचर पे मेंटेन करें. उससे ऊपर या नीचे जाएगा तो वो दवाई का प्रॉब्लम हो जाता है. वेजिटेबल्स टू कीप देम फ्रेश, उसका क्या है कि नॉर्मली उसका टेम्परेचर 8 डिग्री 7-8 डिग्री में रखना पड़ता है. तो वो एरिया अलग रहता है जहां पर आप टेम्परेचर कंट्रोल करके रखते हैं एट 7 और 8 डिग्रीज. एंड देन देयर इज फ्रोजन फूड. फ्रोजन फूड का क्या है कि आप आइसक्रीम भी ले लो या अभी काफी कुछ मीट भी आता है, बहुत कुछ आते हैं आजकल जो फ्रोजन बना है. फ्रोजन मतलब क्या है कि -5 जीरो के नीचे, बट टिपिकली -5, -4, -5 या -10, -20 सेल्सियस में रखना पड़ता है. तो उसके लिए अलग से एरिया बनता है. तो समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द टेम्परेचर कंट्रोल्ड थिंग इज केप्ट इन सेपरेट कैबिनेट्स लाइक दिस. अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग मटेरियल रखने के लिए. कि कभी बाहर स्पेशल आइटम अगर हजारस मटेरियल है बट दैट हैज टू बी केप्ट अंडर स्पेशल टेम्परेचर कंडीशंस, उसके लिए बाहर से उसको एक कैबिनेट बना के उसके टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, रेफ्रिजरेशन वगैरह करते हैं. और दिस पॉसिबली इज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स बीइंग केप्ट. ये पूरा वेयर हाउस स्पेस जो भी है उसको पूरा उन्होंने कूलिंग कर रखा है फॉर एट दैट 7-8 डिग्री सेल्सियस. So this is by purpose, special purpose. Okay. So that's another way in which you can define a warehouse. And then there is this consolidation, this type of warehouse by use. Again, इस पे क्या है कि consolidation center. There are 3 or 4 different things. Consolidation center, cross dock है, distribution center है, fulfillment center. Now we have to understand what each of these things are. Consolidation center. Do you remember these words? Anybody? LCL to FCL. Anybody? What is LCL? What is FCL? And what is LCL to FCL? Sir, less container load, full container load. Very good. I hope at least one person remembered, so I'm happy. Now I know for sure I spoke about it. So what happens in a consolidation center, LCL to FCL? Less than container load, not less container load, less than container load to full container load. That's correct. तो कंसोलिडेशन सेंटर में क्या होता है?
LCL को FCL करते हैं, मतलब क्या है? सर मीन्स जो कंटेनर फुली लोडेड नहीं है उनको फुली लोडेड कर देते हैं सर। कल या परसों हम बात कर रहे थे ना, कोई मैं कुछ 10 टीवी भेजना चाहता हूँ, कोई Yes, एक sir. सोफा भेजना सोफा चाहता है। सेट हाँ, और अपना कौन था वो साइकिल भेजने वाला? विशाल सर। तो क्या अलग अलग चीजें आते हैं कंटेनर में, एक कंटेनर में उसको स्टफ कर देते हैं, तो वो कंसोलिडेशन होता है। तो ये ट्रक्स के होते हैं, ट्रेन्स में, मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन में जब अगर फुल करते हैं तो गुड्स वैगन जो फिल करते हैं तो वो भी कंसोलिडेशन है। तो कंसोलिडेशन सेंटर होता है जहाँ पर मटेरियल कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, उसको दे मेक इट इनटू अ वन सेट, इनटू वन कंटेनर, इनटू अ ट्रक, टू द सेम लोकेशन। अगर एक ऑरिजिन से एक डेस्टिनेशन, एक ही सेम डेस्टिनेशन जा रही है, अगर मुंबई से वो नागपुर जाना है मटेरियल, तो जब लोग कलेक्शन करके आते हैं, वो क्या बोलते थे, फर्स्ट माइल से कलेक्शन करके आते हैं, तो वो जो मटेरियल आता है वो मुंबई में फर्स्ट माइल का कलेक्शन हो रहा है, वो क्या करते हैं, वो नागपुर के लिए लाता है, हैदराबाद के लिए लाता है, दिल्ली के लिए लाता है, भोपाल के लिए लाता है, वडोदरा के लिए लाता है, कानपुर के लिए, कैसे भी मटेरियल आता है। लेकिन कंसोलिडेशन सेंटर में आके उसको सॉर्टिंग करके ये नागपुर वाले मटेरियल एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, और जब नागपुर की ट्रक आती है उसके अंदर सारे मटेरियल डाल देते हैं। नागपुर का ट्रक कब बुलाते हैं, जब नागपुर का फुल लोड बन जाता है तब उसको बुलाते हैं, या उनका रेगुलर टाइम शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से उनको चलाना है तो फिर रेगुलर टाइम पे आ जाता है। दोनों ऑप्शंस हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, उस हिसाब से चलाते हैं। तो उसको नागपुर का सॉर्टिंग करके इकट्ठा कर दिया, फुल ट्रक लोड हो गया, उसको एक ट्रक बुला के, नागपुर का ट्रक बुला के उसको लोड कर दिया, तो ये कंसोलिडेशन सेंटर है। बट एक तरफ से वो कंसोलिडेशन सेंटर है, दूसरे तरफ से आप अगर देखो तो फर्स्ट माइल, मुंबई में फर्स्ट माइल करके काफी जगह से मटेरियल आ रहा है, राइट, काफी जगह से मटेरियल आ रहा है इस जगह पे, और यहाँ से कंसोलिडेट करके कहीं जा रहा है। तो ये हम पहले फर्स्ट माइल होने के बाद में ये हब बन जाता है, जहाँ पर पूरा फर्स्ट माइल का जो मटेरियल है आके पहुंच जाता है। ऑल द मटेरियल फ्रॉम द फर्स्ट माइल डिफरेंट प्लेसेस से एक हब में आता है जो कंसोलिडेशन सेंटर है, वहां से वो निकल जाता है टू डिफरेंट लोकेशंस अगेन। तो वो एक हब भी है, वो कंसोलिडेशन वहां पर हो रहा है, इसीलिए वो कंसोलिडेशन सेंटर है। क्योंकि वो क्या है कि कंसोलिडेट करके इस हब से दूसरे कहीं नागपुर में जो भी हब होगा उस हब में चला जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज अ कंसोलिडेशन सेंटर। क्रॉस डॉक, ओके, कंसोलिडेशन सेंटर में एक फर्क है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि बिकॉज बिटवीन क्रॉस डॉक और कंसोलिडेशन सेंटर का क्या फर्क है। कंसोलिडेशन सेंटर में आपको मटेरियल स्टोर करने के लिए जगह रहेगा, मटेरियल स्टोर करने के लिए आप कंसोलिडेशन सेंटर में जगह रहता है। क्योंकि क्या है कि कुछ जगह का, कुछ ऐसे जगह होंगे जिसके लिए आपका रोज गाड़ी नहीं जाता है, एक हफ्ते में एक बार जाता है शायद, तो फर्स्ट माइल से मटेरियल आ गया, कंसोलिडेट करके उसको आप अपने पास रख रहे हो, आपके इन्वेंट्री में वो रहता ही है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए भी शायद, डिपेंडिंग ऑन। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक कंसोलिडेट करके उसको रख ही देते हैं वहां पर, जब चाहिए तब लेके जाते हैं। सो स्टोरेज का मटेरियल स्टोरेज के लिए वहां पर थोड़ा बहुत जगह रहता है, और उसको वहां से तो कंसोलिडेट जब हो जाता है फिर उसको भेज देंगे, ओके। तो क्रॉस डॉक इज ऑल्सो लाइक अ कंसोलिडेशन सेंटर, लेकिन क्रॉस डॉक का क्या है कि मोस्टली वो ये कंसोलिडेशन सेंटर इज द हब फॉर अ फर्स्ट माइल टू मीडियम माइल और मीडियम हॉल और लॉन्ग हॉल के लिए कंसोलिडेट हो जाता है। आपको ये सब शब्द याद रहना चाहिए, फर्स्ट माइल, मीडियम हॉल, लॉन्ग हॉल, शॉर्ट हॉल, hub and spoke, all of this we have spoken in transportation. That is why we did transportation first before we did warehousing, okay.
तो अगर आपको ये सब याद नहीं है फिर प्लीज रश एंड लुक एट दोस लेसन्स अगेन. मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ वहां पर. हम काफी अच्छी तरह डिस्कस किए हुए हैं. Please go back and see what it is. Consolidation center is typically when material comes from the first mile. मटेरियल को कंसोलिडेट करके उसको मीडियम हॉल या शॉर्ट हॉल रूट्स में भेज देते हैं. क्रॉस डॉक फैसिलिटी, क्रॉस डॉक वेयरहाउस जो होता है वो ऐसे लोकेशन है जहां पर ज्यादा मटेरियल स्टोर करने का जगह नहीं मिलेगा आपको. यू विल नॉट हैव स्टोरेज स्पेस. बहुत कम में अगर है तो भी बहुत कम रहेगा. और वो भी क्या है कि इतना बड़े बड़े रैक्स वैक्स नहीं रहेंगे, बस छोटे मोटे जगह रहेंगे, बट नॉट मच ऑफ मटेरियल स्टोरेज फैसिलिटी. क्रॉस स्टॉक क्या होता है? नागपुर इज अ वेरी ग्रेट क्रॉस स्टॉक लोकेशन. इफ आई हैव टू टॉक लाइक दैट, मेनी कंपनीज look at Nagpur as a cross docking facility simply because उनका क्या है कि मुंबई से ट्रक आता है, कोलकाता से ट्रक आता है, बैंगलोर हैदराबाद से ट्रक आता है साउथ से, आफ्टर नॉर्थ से दिल्ली से जयपुर से लखनऊ से कहीं से भी ट्रक आते हैं नागपुर. वहां आके अपने अपने माल उतार देते हैं. जो दिल्ली से मटेरियल लेके जाता है वहां पर, ट्रक वहां पर पहुंच गए, उसके पास मटेरियल ऐसा होगा कि खाली एक फुल ट्रक चेन्नई तक जाने वाले ट्रक तो नागपुर में रुकेगा भी नहीं, वो चेन्नई चेन्नई चलता रहेगा. लेकिन ये भी करते हैं कि नागपुर में मटेरियल ऐसा आएगा, वहां पर एक ट्रक आगे उतार देगा, वहां पर उस ट्रक में क्या होगा, चेन्नई का मटेरियल रहेगा, मुंबई का मटेरियल रहेगा, हैदराबाद का रहेगा, शायद वहां पर वो बेंगलोर का रहेगा, तो जबलपुर का भी रह सकता है. तो all of this material will come and get unloaded from Delhi. फर्स्ट माइल कहीं से दिल्ली के आसपास से, दिल्ली से मटेरियल पिकअप करके एक कंसोलिडेशन सेंटर में आके वहां पर वो नागपुर के ट्रक में कंसोलिडेट होके नागपुर पहुंच जाएगी. मीडियम हॉल, लॉन्ग हॉल ले लो, दिल्ली टू नागपुर लॉन्ग हॉल में चला जाएगा. लॉन्ग हॉल में वहां जाके वहां पर उतारने के बाद में वहां पर सॉर्टिंग हो जाएगा. तो जो चेन्नई से एक ट्रक आई हुई थी मटेरियल लेके, उस पे वापस ये वाली मटेरियल चला जाएगी. और बाकी जगह मुंबई से भी एक ट्रक आई होगी, वहां उसमें भी चेन्नई का मटेरियल रहेगा, उसमें भी वो भी चेन्नई का ट्रक में चला जाएगा. मुंबई से भी दिल्ली का ट्रक आई, दिल्ली का मटेरियल आई, उसको दिल्ली के ट्रक में डाल देंगे. तो ऐसे मटेरियल को इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे घुमाते सारे मटेरियल को अपने अपने डेस्टिनेशन को भेज देते हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर ये लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेट करता है, अलग ही है दोनों चीज बिल्कुल? ये कौन बात किया सर? अर्शद. अर्शद, आप कब से क्लास ज्वाइन किए? सर डे 1 से करूँ. अलग है पर थोड़ा बहुत मुझे और जानना था, तो मुझे कहीं से समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपसे पूछ लिया. वो बात सही है, मेरे से पूछना अच्छा है. क्लास तो मैं आपकी डे 1 से ले रहा हूँ, समझ रहा हूँ हर एक चीज, पर ये जैसे अर्शद, एक क्योंकि ही क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट 2 क्लासेस या फर्स्ट क्लास के अंदर ये वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट इज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स. ओके, चलो कोई नहीं, एक मिनट रुक जाओ. अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये कंसोलिडेशन सेंटर और क्रॉस स्टॉक के बारे में, तो ये पूरा कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन अटेंड करता हूँ. ओके, कोई नहीं. श्योर. तो क्या है कि सो ये क्रॉस स्टॉक क्या है, जहां पर ट्रक्स अपने अपने शेड्यूल पे पहुंच जाते हैं, माल उतार देते हैं, इमिडिएटली माल वापस उठा के दूसरे जहां जाना है पहुंच जाते हैं. या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दिल्ली से चेन्नई जाने वाली गाड़ी है, वो उसमें क्या है कि 75% मटेरियल चेन्नई सीधा जाने वाली मटेरियल है, लेकिन बस 25% मटेरियल ऐसा है कि उसको ये जबलपुर का मटेरियल है या राउरकेला का मटेरियल है, ऐसे कोई मटेरियल है, तो वहां जाके उसको नागपुर में उतार देता है. और वहां पर चेन्नई का कुछ मटेरियल आया होगा इधर उधर से, उसको भी लोड करके, क्योंकि जब भी गाड़ी जा रही है, हम कल बात कर रहे थे यूटिलाइजेशन के बारे में, when we were talking about KPIs. When a transportation, when a truck is running, we want to make sure that the utilization will be full.
ट्रक भर के जाना चाहिए, तभी तो उसका पूरा पैसा हम ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर 75% गाड़ी भर के तो नहीं बेचते हैं, तो उसको बाकी 25% का जो भी माल है उस डायरेक्शन का उसमें डाल के नागपुर क्रॉस स्टॉक में जाके वो उतार देता है, और चेन्नई का जो भी माल वहां पर मिलता है उसको लेके आगे चला जाता है, वो चेन्नई चला जाता है। और दूसरा जो गाड़ी जबलपुर से आई वहां पर, वो जबलपुर का माल दिल्ली से जो ये माल ये पहले वाली गाड़ी उतार के गई उसको उठा के वापस जबलपुर चला जाता है। तो क्रॉस टॉक इज प्राइमरली डूइंग दिस स्विचिंग, एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी को स्विच करता है। बस उसका क्या है कि क्रॉस टॉक क्यों बोलते हैं, इट इज लाइक वन रेलवे प्लेटफॉर्म, बस एक डॉक है, ओके, और छोटा सा कवर्ड स्पेस है जिसके इतना चाहिए कि इधर से मटेरियल आई उतरी और उस गाड़ी पे गई। जैसे आप करते हो, जैसे मेट्रो, अगर दिल्ली जैसे शहर में आप रहते हो, then you will be traveling by metro. Or if you are like a Naveen who is traveling from Kumbakonam to Bangalore, the time that he doesn't decide not to go by bike and go by bus, okay, he will go from Kumbakonam to one Trichy. And one Trichy, he will get down from the Kumbakonam Trichy bus, he will get down and go and look for some Trichy to Bangalore bus. तो वो बस स्टेशन जो है, आपको बस स्टेशन में तो कोई ऐसे नहीं है कि अब वहां पर लोग रहते हैं होटल बना के उसके अंदर ही रहते हैं, वहां जाते हैं एक बस से उतर के अपने काम पे चले जाते हैं, या उस बस से उतर के दूसरे बस पे चढ़ के चले जाते हैं। क्रॉस डॉक इज लाइक अ बस स्टेशन, एक ट्रक से मटेरियल आई दूसरे बस पे दूसरे ट्रक पे चढ़ गई और चलेगी, राइट, दैट इज व्हाट अ क्रॉस डॉक इज। स्टोरेज स्पेस नहीं रहता है उसके लिए, वो क्रॉस डॉकिंग करने के लिए जितना जगह चाहिए उतना जगह रहता है। कंसोलिडेशन सेंटर में क्या है कि स्टोरेज के लिए जगह रहता ही है, जहां पर आप मटेरियल रखते हो और फिर कंसोलिडेट करके भेजते हो, ठीक है। नाउ टू गो एंड आंसर आदर्श था ना उसका था क्वेश्चन, वो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। अर्शद Yes, sir. Yes, sir. अर्शद, Yes, sir. Yes, sir. सप्लाई चेन बहुत मोटा है, जस्ट थिंक इट दैट वे, सप्लाई चेन क्या करता है, सप्लाई चेन का मटेरियल का एंड टू एंड का जितना भी काम है उतना सप्लाई चेन के अंदर है। Yes, sir. अगेन एक सिंपल सा एग्जांपल पकड़ लो, एक खाने वाला एग्जांपल बहुत आसान से सब कुछ समझ आता है इसीलिए मैं उसको यूज करता हूँ। आप Yes, sir. आप अगर कोई खाना ऑर्डर करते हो स्विगी से, ठीक है, Yes, sir. आप कोई रेस्टोरेंट स्विगी के थ्रू कोई रेस्टोरेंट को ऑर्डर करोगे, Yes, तो वो sir. रेस्टोरेंट वाला क्या करता है, आप अगर एक पराठा ऑर्डर करते हो, पराठा का लिए बनाने के लिए उसको आटा चाहिए, उसका आटा बनाने के लिए उसको गेहूं चाहिए, उस Yes, गेहूं sir. के लिए कोई खेत से माल आना चाहिए, राइट। तो वो खेत से लेके सप्लाई चेन कहाँ से कहाँ तक है, वो खेत से लेके और आपके घर तक है, बनाने से लेके मेरे डिलीवरी तक है। आपके डिलीवरी तक है। तो अगर मैं खेत से वो जो भी खेतीदारी जो भी करता है, ऑल द फार्मर्स आर डूइंग वर्क देयर, ओके, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गेहूं, ऑफ द व्हीट, ओके। तो वो प्रोसेस भी उसके अंदर इंक्लूडेड है सप्लाई चेन के अंदर, वो मैन्युफैक्चरिंग है। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर दिखता है तो वो वहां पर क्या हो गया कि जब तक गेहूं क्या हो गया, द व्हीट हैज बिकम फ्लोर, व्हीट फ्लोर का लेके वो तो क्या करता है, वो पराठा बनाता है उसको। तो पराठा बनाने के लिए उसका क्या क्या प्रोसेस करना है, उसको उसको पहले आटा भूनना है, उसको देन ही हैज टू बेक द पराठा, उसको तवा पे डालना है या जो भी करना है वो सब Yes. कर कुरा के पैकिंग करना है, वो भी सप्लाई चेन है। लेकिन लॉजिस्टिक्स कहाँ है, लॉजिस्टिक्स खेत से वो ग्राइंडिंग फ्लोर मिल जो है वहां ले आने के लिए लॉजिस्टिक्स कहाँ पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग। वो गेहूं Yes. को उठा के वहां पर पहुंचाया, वो फ्लोर मिल के अंदर उस गेहूं को सॉर्टिंग किया डिफरेंट क्वालिटी का, उसको ग्राइंडिंग किया, उसको मिल में डाला, उसका पाउडर निकाला, फ्लावर किया, उसका पैकिंग किया, वो सब लॉजिस्टिक्स नहीं है। फिर वापस उस फ्लावर को लेके वो पैकिंग कर जो हो गया उसको लेके उसको इन्वेंट्री रखा वेयर हाउस के अंदर, वो लॉजिस्टिक्स के अंदर आ गया, वेयर हाउस आ गया, इन्वेंट्री आ गया, लॉजिस्टिक्स आ गया। फिर गाड़ी में लोड किया, वो भी लॉजिस्टिक्स हो गया। Yes. गाड़ी वहां से रेस्टोरेंट आ गया, वो लॉजिस्टिक्स हो गया। फिर रेस्टोरेंट में पराठा बन गया, वो आपका सप्लाई चेन के अंदर। फिर वापस
रेस्टोरेंट से स्विगी उसको बाइक में लेके आपके पास आता है, वो लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक हो गया, ठीक है। तो आप एंड टू एंड खेत से लेके आप एक मुंह तक सप्लाई चेन, ठीक है। लेकिन जो बीच में जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी, ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो होता है वो लॉजिस्टिक्स। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो भी सप्लाई चेन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इतना लंबा चौड़ा सप्लाई चेन को कोई इतना देखता नहीं है, तो वो अपने अपने सप्लाई चेन देखता है। मेरा सप्लाई चेन कहाँ से, मैं वो फ्लावर मिल का आदमी हूँ, मैं फ्लावर मिल चलाता हूँ, मेरा सप्लाई चेन कहाँ से कहाँ तक है। मेरा इतना है कि मैं खेत का देखता हूँ और रेस्टोरेंट का डोर देखता हूँ, वहां से वहां तक मेरा अपना सप्लाई चेन को मैं इतना फोकस करके देखता हूँ। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो सप्लाई चेन वो खेत से आपके मुंह तक। तो ऐसे ही कोई भी मटेरियल के बारे में आप सोचे, then you will understand how it works. So we understand the difference between supply chain, logistics उसके अंदर, okay? समझ आया? यस सर, गॉट इट। Excellent. थैंक यू सर। All right. So consolidation center and cross-dock. Now there is one more thing called as a distribution center. Now what is this animal distribution center? A distribution center is like a consolidation center, but the difference between the distribution center and the consolidation center primarily is that distribution center is a very big setup, जहां पर काफी टाइम के लिए, इतना ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हम इन्वेंट्री इतने दिनों के लिए रखेंगे, ये प्लान्ड है। कंसोलिडेशन सेंटर में इन्वेंट्री रहता है टिल द टाइम सफिशिएंट मटेरियल कंसोलिडेट्स फॉर फिलिंग अप द नेक्स्ट कंटेनर और द नेक्स्ट ट्रक, जो भी है, ठीक है। जब तक गाड़ी आती है, जब तक गाड़ी मिलती है, जब तक गाड़ी भरने के लिए जितना सामान चाहिए उतना सामान मिल जाता है, वो उसके लिए कंसोलिडेशन सेंटर है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ऐसा है कि मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक रखता हूँ। तो टिपिकली कंपनियां क्या करते हैं, इंडिया के ज्योग्राफी में देखो तो नॉर्मली नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हो जाता है। ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ क्या होता है कि यू आर एक्चुअली हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। आप एक लोकेशन रखते हो कि जहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माल ला के रख देते हो और वहां से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को मटेरियल बेचते रहते हो। फैक्ट्री में बनता है मटेरियल, वहां से कम्स टू अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। उसमें भी क्या है कि सेंट्रल डीसी होता है, सेंट्रलाइज्ड डीसी जो बहुत बड़ा है, और लोकल डीसी होता है वो काफी छोटा रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यू हैव वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, व्हाटएवर साइज, वहां पर लाके इन्वेंट्री बिल्ड करते हो और उधर से माल बेचते हो। यहाँ पर क्या है कि दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कस्टमर को माल भेजने के लिए मटेरियल रखते हो। कस्टमर इज नॉट कंज्यूमर, आप याद रखें ना। कंज्यूमर आप जो खरीदते हो, आप कंज्यूमर हैं। कस्टमर जो है, अगर कोई, हम टीवी के सैमसंग के बारे में बात किए हुए, टीवी फ्रिज वगैरह जो भी बनाते हैं, सैमसंग आपको सीधा बेचता है क्या? नहीं करता है। दे सेंड इट टू अ डीलर, कोई दुकानदार को भेजते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फिर दुकानदार को देते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर या वो डायरेक्ट डीलर हो, वो उनका कस्टमर बन जाता है। लेकिन सैमसंग का कंज्यूमर कौन हो? आप हो। आप एक्चुअली हर एक पीस को यूज करते हो, तो आप कंज्यूमर बन जाते हो, ठीक है। थैंक यू। तो ये याद रखना है, कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज फोकस्ड ऑन द कस्टमर, मतलब कस्टमर जो डायरेक्ट डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलरशिप्स को भेजना है, रिटेलर को भेजना है, उसके लिए आता है। डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में ये भी होता है कि प्रोडक्ट मिक्सिंग होता है। प्रोडक्ट मिक्सिंग मतलब क्या है? सैमसंग का एग्जांपल वापस ले लेते हैं। सैमसंग का बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। सैमसंग है टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स। मैं फोन के बारे में नहीं उठा रहा हूँ बिकॉज दैट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग। वॉशिंग मशीन होता है, टीवी होता है, रेफ्रिज होता है। जस्ट लेट अस टेक दिस थ्री। उनका वॉशिंग मशीन का फैक्ट्री कहीं और है, टीवी का फैक्ट्री कहीं और है, रेफ्रिजरेटर का फैक्ट्री कहीं और है।
लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में क्या कहता है, वहां आके सारे सब कुछ मटेरियल वहां पर पहुंच जाता है फॉर अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी। अगर मैं नॉर्थ रीजन के बारे में बात करूं, नॉर्थ रीजन के लिए उन्होंने शायद नोएडा में एक लोकेशन बना रखा है उन्होंने, जहां पर टीवी फैक्ट्री से टीवी आ जाता है, वॉशिंग मशीन फैक्ट्री से वॉशिंग मशीन आ जाता है, रेफ्रिजरेटर भी आता है। लेकिन उनका डीलर कैसे ऑर्डर करता है, वो ये नहीं ऑर्डर करता कि एक ट्रक पूरा टीवी बेच दो मुझे, वो ऐसे नहीं करता है। वो बोलता है मुझे 10 वॉशिंग मशीन, 20 रेफ्रिजरेटर और 50 टीवी बेच दो। हाँ, उसके अंदर मॉडल होते हैं तो वो भी अलग अलग, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से उसको प्रोडक्ट को मिक्स करके उसको उनको भेज देते हैं, राइट। तो वो प्रोडक्ट मिक्सिंग पे उसको अलाउ करता है। कभी कभी प्रोडक्ट्स ऐसे भी आते हैं कि बल्क में आते हैं, उसको पैकेजिंग करना पड़ता है, तो पैकेजिंग को भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ऑप्शन आता है। ओके, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में स्टोरेज का, एज आई सेड, इट इज प्लान्ड स्टोरेज रहेगा। वहां पर एक मतलब 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मटेरियल रखने के लिए प्लान रहता है कंपनियों का। कंसोलिडेशन सेंटर में ऐसा प्लान नहीं है, गाड़ी के लिए वेट करता रह रहा है कि इतना ही उनका वहां पर स्टोरेज का कैपेसिटी होगा। यहाँ पर प्लान्ड इन्वेंट्री है। जैसे दिवाली आ रही है तो उसके वहां उस टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सेल, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में माल लाके उसको इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं पहले से ही। कंसोलिडेशन सेंटर में नहीं होगा। कंसोलिडेशन सेंटर में रिपीटिंग इट इज ओनली वेटिंग फॉर द मटेरियल, फॉर द व्हीकल टू फिल, दैट्स ऑल। जैसे ओके, सो distribution center is another kind of service. Each requirement is different, you should remember. So the size of a consolidation center is not very large. It is just enough to keep material. Cross-dock is more about having facilities for more facility for transport. बस स्टॉप, बस स्टैंड, जो बड़ा बस स्टैंड होता है वहां पर क्या होता है कि बस आके खड़े होने को, जाने को जगह रहता है, okay, वहां रुकने का जगह नहीं रहता है। सो आपको मतलब रुकने मतलब पीपल को स्टे करने को ये वो जगह नहीं रहता है, आसपास कुछ रहते हैं जगह, बट वहां पर उसके अंदर नहीं रहता है। सो क्रॉस डॉक इज वन, लंबा चौड़ा इज लाइक अ रेलवे प्लेटफॉर्म, मोर लाइकली, मोस्ट लाइक दैट। ओके, कंसोलिडेशन सेंटर इज स्लाइटली डिफरेंट। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का पर्पस डिफरेंट है, तो उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट अलग है, उनके अंदर फैसिलिटीज का रिक्वायरमेंट अलग है। नाउ देन कम्स द सिचुएशन ऑफ द फुलफिलमेंट सेंटर। ओके, ये क्या है? सर हाँ बोलो। सर प्रोडक्ट मिक्सिंग एक बार रिपीट कर देना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। I'll use the same example. When you look at these large companies, take example of these large companies. उनका क्या है कि the dealer or the retailer is selling all their products. वॉशिंग मशीन भी, रेफ्रिजरेटर भी, टीवी भी, साउंड सिस्टम्स, जो म्यूजिक सिस्टम जो भी, डीलर विल बी डूइंग ऑल ऑफ दैट। लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जैसे होता है नॉर्मली, उनका मेनी टाइम अलग अलग होते हैं। कहीं उनका मैन्युफैक्चरिंग का, टीवी का मैन्युफैक्चरिंग कहीं है, कहीं से वो टीवी शायद इंपोर्ट होके आ रहा है, रेफ्रिजरेटर शायद इधर नोएडा में बनता है, वॉशिंग मशीन शायद चेन्नई में बनता है। ओके, देयर आर डिफरेंट लोकेशंस इन विच द मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस। कंपनी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर इन्वेंट्री प्लान करके लाके रखता है, हर आइटम का, हर ऑब्जेक्ट, हर प्रोडक्ट। सो आपके क्या है कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर नाउ यू हैव टीवी भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, वॉशिंग मशीन भी है। नाउ व्हेन द डीलर ऑर्डर करता है, डीलर ऑर्डर करता है, बोलता है कि मुझे इसमें ये 10 चाहिए, उसमें 20 चाहिए, उसमें 25 चाहिए, ऐसे। दैट इज हाउ दे ऑर्डर, एंड द डीलर ऑर्डर्स लाइक दैट। आपके यहाँ पर इतना मटेरियल है और उसको उठा के आप बेच सकते हो। अब फैक्ट्री से बेच नहीं सकते हो क्योंकि एवरीथिंग इज 10, 15, 20 ऑर्डर करता है डीलर, तो यू कांट सेल। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आप देखो, मिक्स एक ट्रक में जब डीलर का ऑर्डर जाता है तो उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेटर, वॉशर। ओके, अगर आप एफएमसीजी ले लो, एफएमसीजी इज अ बेटर एग्जांपल। व्हाट इज एफएमसीजी? सर फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनियां बताओ कौन सी गुड का? सर हिंदुस्तान यूनिलीवर। यूनिलीवर,
आईटीसी, आईटीसी है, पीएनजी है, राइट। कॉलगेट से। हाँ, तो इनका अगर देखे हो, दे हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, आईटीसी का बिस्किट भी रहता है, सोप पाउडर भी रहता है, आटा भी, आशीर्वाद आटा भी रहता है, राइट। एंड दे कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट फैक्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। बट जब दुकानदार ऑर्डर करता है, वो आईटीसी वालों को बोलता है कि मेरा सनफीस्ट का ये वाली बिस्किट इतना चाहिए, इतने केस चाहिए, वो वाला आशीर्वाद आटा इतने केस चाहिए, और मेरा वो ऑयल, सनफीस्ट का ऑयल भी रहता है, वो ऑयल इतने केस चाहिए, और मेरा वो सोप पाउडर इतने केस चाहिए। तो आईटीसी का क्या है कि उनका अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ये सारे सब कुछ रखे हुए हैं, तो वहां से अलग अलग फैक्ट्री से आया हुआ है, उसको एक ही ऑर्डर पे मिक्स हो जाता है, वो डीलर को, रिटेलर को डिलीवरी करते हैं दुकानदार। दैट इज मिक्सिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर इफ यू आर केप्ट अंडर डेडिकेटेड वेयरहाउसेस, एक वेयरहाउस में आप बस कुकिंग ऑयल रख दिए, एक वेयरहाउस में आप बस आटा रखा, एक वेयरहाउस में यू केप्ट बिस्किट्स, तो ये ऑर्डर मिक्सिंग को नहीं कर सकते, राइट। यस सर। प्रोडक्ट मिक्सिंग, सॉरी। बाकी लोगों को समझ आया? ओके। फुलफिलमेंट सेंटर, इसमें जो लिखा हुआ है, मेरा एक गलती है इसमें, कंज्यूमर लिखना था इसको, मोस्टली इट इज कंज्यूमर, नॉट बाय द कस्टमर। Fulfillment center, to understand the fulfillment center, it is easy to understand it using the e-commerce example. Fulfillment center is also, see, that way if you look at it, every one of them is a hub. Okay. कहीं से सारे मटेरियल इधर इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं अलग अलग। ओके, फुलफिलमेंट सेंटर भी क्या है कि इट इज द उल्टा ऑफ द कंसोलिडेशन सेंटर इन अ वे। ओके, यहाँ पर कहीं कहीं से मटेरियल आ जाता है, जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट को ले लीजिए। फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ रहता है? मैं गुड़गांव में रहता हूँ, राइट। मेरा गुड़गांव में मेरे घर के पास मतलब कुछ किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर हो सकता है, 5-10 किलोमीटर दूर फुलफिलमेंट सेंटर रहता है। गुड़गांव में जितना भी मटेरियल ओके डिस्ट्रीब्यूट जो होना है, वो सारे मटेरियल उस फुलफिलमेंट सेंटर में पहुंच जाता है अमेजोन के। ओके, और वहां पर आके, गुड़गांव भी क्या कि इतना छोटा नहीं है, गुड़गांव भी काफी बड़ा है। सो वहां पर जैसे सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग करवा के वो बाइकर के पास दे देते हैं। हर एरिया का, तुम्हारे एरिया में 10 बाइकर जाएंगे, उस एरिया पे हर आदमी के पास में 50 से 80 पैकेजेस होंगे। फुलफिलमेंट क्या है? फुलफिलमेंट इज द लास्ट माइल, कंज्यूमर को डिलीवरी जब जहां से होता है वो फुलफिलमेंट होता है। तो फुलफिलमेंट सेंटर हैंडल करना इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ठीक है, डिलीवर मटेरियल स्ट्रेट टू कंज्यूमर, कस्टमर के जगह पे। ओके, इट इज लोकेटेड क्लोज टू द कस्टमर्स, इट इज ऑफरिंग शॉर्ट टर्म स्टोरेज। शॉर्ट टर्म मीनिंग आज सुबह मटेरियल आया, शाम तक मटेरियल सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, सबको दिया जाना चाहिए। बट फिर भी क्या है कि कभी कभी आपके घर आता है, आप नहीं हो, डिलीवरी नहीं ले सकते हो, सीओडी है तो आप वो छोड़ के नहीं जा सकता, तो उसको वापस लेके आना है, तो उसको वापस ले जाना है, तो घर पे तो नहीं ले जाएगा वो बाइकर। द बाइकर विल गो बैक टू दी फुलफिलमेंट सेंटर, वहां जाके उसको रिटर्न कर देगा, उसका अकाउंटिंग हो जाएगा, वहां पर उसको स्टोर करके रखेंगे, फिर अगले दिन उसको वापस सर्कुलेशन छोटे इस पे बाइकर के पास ले देंगे। सेम बाइकर होगा, दूसरा बाइकर होगा, जो भी है, राइट। सो फुलफिलमेंट सेंटर अगेन इज अ स्मॉल स्टोरेज लोकेशन। बाहर से मटेरियल वहां पर आता है और वहां से लेके कंज्यूमर को दे देता है। सो दैट्स अ डिफरेंस। नाउ तो क्या, सो व्हेन यू वांट सेट अप अ वेयरहाउस, क्या बात होती है? आई वांट टू सेट अप अ डिस्ट्रीब्यूट, बोलते हैं कि मुझे कंसर्न सबसे पहले ये हो जाता है, मुझे किस चीज के लिए चाहिए। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेटअप करनी है, बट मैं आईटीसी हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेटअप करने में मेरा
उसमें से 75% ऑफ द एरिया एम्बियंट हो सकता है, बाकी 25% मुझे टेम्परेचर कंट्रोल्ड चाहिए और ऐसे ऐसे टेम्परेचर में मुझे रखना है, तो उसके लिए अलग अलग फैसिलिटी चाहिए। ओके, वो एक वो मेरा क्या है कि काफी बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तो मेरा स्टैंड अलोन रहना अच्छा है। बस आई वांट द एंटायर फोकस, मेरा आईटीसी हूँ, मेरा वो काफी बड़ा है तो मैं कर सकता हूँ। आई नीड अ स्टैंड अलोन ऑपरेशन। और अगर एक लॉजिस्टिक्स पार्क के अंदर वो स्टैंड अलोन ऑपरेशन रहेगा तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज ऑल द ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर थिंग्स विल बी अवेलेबल इनसाइड दैट। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ मेरा वेयरहाउस रिक्वायरमेंट। मुझे अगर नया वेयरहाउस खोलना है तो कैसे कैसे करना, अगर मैं आईटीसी जैसे कंपनी हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू हाउ इट विल गो। मुझे पूरा ऐसे ओपन तो नहीं, आई कांट यूज ओपन वेयरहाउस, मुझे ओपन यार्ड नहीं चाहिए, मुझे कवर्ड चाहिए। ओके, तो वर्टिकल आरसीसी बिल्डिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज मेरा हाई रैकिंग जरूरत है, मेरा टॉल रैकिंग वगैरह जरूरत है, तो आई नीड अ टॉल वेयरहाउस व्हिच इज कवर्ड। मुझे कवर्ड वेयरहाउस चाहिए। तो कितने कितने इंफॉर्मेशन अभी दिया है उन्होंने, वो बोला है कि मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चाहिए। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में उनको एम्बियंट कितना चाहिए और टेम्परेचर कंट्रोल कितना चाहिए वो बताए थे। वो बोले मुझे स्टैंड अलोन वेयरहाउस चाहिए। आई कांट यूज, मेरे हिसाब से मेरे सिचुएशन में मैं स्टैंड अलोन शेयर्ड वेयरहाउस यूज नहीं कर सकता, मुझे ये चाहिए, मतलब क्या है, स्टैंड अलोन चाहिए। ओके, और फिर बोलता है कि मुझे कवर्ड चाहिए, ओपन नहीं चाहिए, मुझे कवर्ड चाहिए, आरसीसी भी नहीं चाहिए, मुझे कवर्ड चाहिए, टॉल वेयरहाउस चाहिए, ताकि मैं उसके अंदर काफी रैक्स वगैरह एस्टेब्लिश करूँ वगैरह करूँ, तो मेरा स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन, फ्लोर यूटिलाइजेशन बेटर रहेगा। और ऑब्वियसली मुझे बॉन्डेड नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज ओनली डोमेस्टिक। मुझे बस ये पब्लिक वाली वेयरहाउस होगी जो मैं लीज में ले सकता हूँ, मेरा खुद का वेयरहाउस नहीं चाहिए। तो अगर आप वेयरहाउस चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू सेट अप अ वेयरहाउस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेयरहाउस, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, नॉट ऑल। इससे और भी इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, बट एटलीस्ट ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये आपको बताना पड़ता है। ओके, तो मैं सपोज आई एम अ कंपनी लाइक अ मारिको। मारिको क्या बनाता है? वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स ऑफ मारिको, सोप। सोप होगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स ऑफ मारिको इज पैराचूट कोकोनट ऑयल। तो वो क्या करता है, उसका भी क्या है कि उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चाहिए। ओके, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कैसे चाहिए? फुल एम्बियंट काफी है मेरे लिए, आई डोंट वांट एनी टेम्परेचर कंट्रोल, फुल एम्बियंट काफी है। आई कैन गो फॉर अ शेयर्ड वेयरहाउस, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट कैटेगरीज कम है, स्केल्स कम है, तो आई विल गो फॉर अ शेयर्ड वेयरहाउस बोलेगा वो। ओके, एंड देन ही विल से मुझे भी कवर्ड चाहिए वगैरह। अगर मैं टाटा स्टील हूँ, टाटा स्टील क्या है कि टाटा स्टील शुरू से बोलेगा मुझे ओपन यार्ड चाहिए। वो स्टैंड अलोन का जरूरत नहीं है, शेयर्ड भी हो सकता है। ऑब्वियसली ओपन यार्ड हो तो एम्बियंट ही होगा, राइट? तो those are, that is how you start defining your warehousing requirements. Okay, अगर आप अमेजोन हो, अमेजोन क्या चाहेगा? अमेजोन को पूरा चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं चाहिए, उनको कंसोलिडेशन सेंटर चाहिए, उनको क्रॉस डॉकिंग सेंटर्स भी चाहिए, उनको फुलफिलमेंट सेंटर भी चाहिए। फिर उसमें से ये भी डेफिनेशन आएगा कि उसमें से ऐसे ऐसे चाहिए, मुझे टेम्परेचर चाहिए, ये नहीं चाहिए, एम्बियंट चाहिए। वो ऑब्वियसली उनका अमेजोन का अगर देखा तो कहीं भी उनका शेयर्ड लोकेशन नहीं मिलता है, कहीं उनका, लेकिन मिलता है। सॉरी, देयर आर सम सर्विस प्रोवाइडर्स हु प्रोवाइड अमेजोन विद शेयर्ड लोकेशन आल्सो। वो अमेजोन का भी काम करता है, वो दूसरे कोई छोटे मोटे इनको भी काम करता है, ऑनलाइन ई कॉमर्स वाले को भी काम करते हैं, तो उनको भी शेयर्ड वेयरहाउस हो जाता है, उनका भी कवर्ड रहता है नॉर्मली। Okay. If you are a medicine manufacturer, okay, if you are a pharmaceutical company, medicine manufacturer, तो आप बोलेंगे मुझे टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए, मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए, और उसमें से मुझे आरसीसी बिल्डिंग हो गया तो बहुत बढ़िया मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि मैं स्टेरलाइज्ड स्पेसेस काफी बना सकता हूँ उसके अंदर। आई विल नॉट बी वरीड अबाउट डस्ट एंड ऑल दिस। कवर्ड वेयरहाउस, नॉर्मल कवर्ड वेयरहाउस के अंदर डस्ट वगैरह आने का चांसेस है। आरसीसी बिल्डिंग होता है तो जैसे ये वाली बिल्डिंग है, इसके अंदर
डस्ट वगैरह रहना कम है, वो सील कर सकता हूँ काफी अच्छी तरफ से, तो ये बेटर है मेरे लिए। ये भी होता है। तो आप वेयरहाउस जब रिक्वायरमेंट बनाते हो तो ये सारे चीजें सोचते हैं। हाँ, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट आने के लिए, जाने के लिए ऐसे चाहिए, इतने डॉक चाहिए, कितने डॉक चाहिए आपको, उसमें आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या चाहिए, उसके अंदर आपको ये पावर सप्लाई कितना चाहिए, वो सब एडिशनल है। बट फंडामेंटली वेयरहाउस मेरा कैसा रहना है, मेरे प्रोडक्ट और मेरे कैसे उसका कैसे डिफेंड करेंगे, दैट इज व्हाट दीस 4 स्लाइड्स आर एक्सप्लेन्ड। ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, और कुछ बात करनी है इसके ऊपर? गुड सर। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इधर आएगी, कंसोलिडेशन सेंटर, क्रॉस डॉक, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, फुलफिलमेंट सेंटर। यार एक तरफ से देखा तो ये सारे एक ही जैसे लगता है, फर्क है, स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस। मैं आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दोस डिफरेंसेस टू यू। अगेन, आज आपने सुन लिए, चले गए, वापस अभी कल आए, तो इट इज नॉट नेसेसरी आपको याद रहेगा। बस इंडस्ट्री में रह रह के भी लोग कंफ्यूज कर देते हैं उसको। आपके लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस सिंपली बिकॉज सबसे पहले आपको एक इंटरव्यू का एक होता है, एक इंटरव्यू पास करना होता है। ओके, तो वो इंटरव्यू पास करने के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले लोग हैं, तो वो पूछेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब सही दिया तो इंटरव्यू में पास होने का मौका अच्छा है, राइट? फंडामेंटली जो इंडस्ट्री में है, वैसे ऑलरेडी है, काम कर रहा है, तो उसका इतना रिक्वायरमेंट वैसे है ही नहीं, क्योंकि वो कैसे भी काम कर ही रहा है। अगर दूसरे इंटरव्यू में जाना है फिर उसको वापस पुशअप करना पड़ता है। बट कंफ्यूज नहीं करो, प्लीज अंडरस्टैंड इट बेटर। जैसे आज आदर्श ना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वापस नाम भूल गया मैं। सो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, वैसे अगर वापस पूछना है तो प्लीज आस्क मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अक्षय बोलो भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये LCL to FCL क्या था? मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था इस पे। ऊपर लिखा है ना, कॉम्बाइन मल्टीपल स्मॉल शिपमेंट इनटू अ लार्ज लोड, LCL to FCL। वो एग्जाम्पल है, राइट? LCL एंड FCL, जैसे हम वी टॉक्ड अबाउट इट, आज भी बात किए थे उसके बारे में। कंटेनर्स, आपको कंटेनर याद है? कंटेनर के बारे में बात किए थे हम। कंटेनर याद है आपको? हाँ जी सर। हाँ, तो अगर आपको एक कंटेनर, आपको कहीं माल भेजना है, जो माल आपके पास है वो ये पूरा कंटेनर नहीं भर सकता है, ठीक है? इट इज लेस देन अ कंटेनर लोड, आपके पास जो माल है। तो आपको पूरा कंटेनर लेंगे तो दो चीज हो सकता है, एक तो महंगा पड़ेगा, दूसरा है वो कंटेनर के अंदर टाइट नहीं रहेगा, उसकी वजह से वो हिल सकता है, डैमेज हो सकता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट कॉस्ट, रिमेंबर। If you are able to tie your material in properly, that is fine. But many times क्या है कि स्टफिंग करते हो तो उसको इतना टाइट स्टफ करते हैं कि हर मटेरियल अपने आप को पकड़ के रहता है, दूसरे मटेरियल को पकड़ के रहता है, हिलती नहीं है, तो डैमेज कम होता है, डैमेज होता नहीं। तो when you have material to ship which is less than the capacity of a container, तो उसको आपके पास जो मटेरियल शिप करना है उसको LCL बोलते हैं, लेस देन कंटेनर लोड बोलते हैं। उसको क्या है कि फ्रेट फॉरवर्डर क्या करेगा, आपके यहाँ से मटेरियल उठा के ले जाएगा अपने CFS में, कंटेनर फ्रेट स्टेशन में, वहां जाके रख देगा। दैट इज अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन सेंटर। तो वहां जाके वो उसको रख लेगा। और अगर मैं भी एक LCL मटेरियल दे रहा हूँ सेम लोकेशन को, एंड व्हेन वी वर स्पीकिंग लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट सेंडिंग मटेरियल फ्रॉम मुंबई टू दुबई, ओके? तो आपने मटेरियल दिया दुबई भेजने को, मैं मटेरियल दिया दुबई भेजने को, और कोई राहुल ने दिया मटेरियल दुबई भेजने को। हम तीनों का मटेरियल क्या है कि कंटेनर की कैपेसिटी से कम है, लेकिन हम तीनों का मटेरियल मिला के एक कंटेनर भर सकता है। तो फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है, ऐसे मटेरियल चुनता रहता है, ढूंढता रहता है, और इकट्ठा करता है, कंटेनर के अंदर डाल देता है। तो जब कंटेनर कैपेसिटी से कम होता है मटेरियल जो शिपमेंट करना है,
उसको लेस देन कंटेनर लोड। तो जब हम फ्रेट फॉरवर्डर से बात करेंगे, हम बोलते हैं मेरे पास मटेरियल पड़ी है, भेजना है दुबई, और कितना मटेरियल है, कितना मटेरियल है, तो वो क्या बोलेगा, सर वो LCL है। LCL बोला तो लेस देन कंटेनर लोड है, लूज मटेरियल है। लेकिन अगर मेरे पास काफी मटेरियल है, अगर मैं सैमसंग हूँ, मैं टीवी बनाता हूँ, मैं दुबई भेजना चाहता हूँ, तो मैं फ्रेट फॉरवर्डर को बोलता हूँ कि मेरे पास दुबई भेजने के लिए लोड है और मुझे पूरा कंटेनर चाहिए, तो वो फुल कंटेनर लोड है, वो पूरा कंटेनर मेरे फैक्ट्री में भेज देगा और उसमें पूरा भर देंगे, टाइट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वो FCL है, फुल कंटेनर लोड। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन, वो कंसोलिडेशन सेंटर में क्या होता है, LCL को, लेस देन कंटेनर लोड को हम तीनों का मटेरियल उठा के एक फुल कंटेनर बना देता है, वो LCL को FCL बना देता है। ओके, ऑलराइट अक्षय। Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Thank you so much, sir. Okay, so just a quick input to you guys. अभी टाइम हो गया वैसे, just look at the right side. अगर मॉडर्न वेयरहाउसेस देखे, बहुत अच्छे सही वेयरहाउस के जो भी रूल्स रेगुलेशंस और सिस्टमैटिक प्रोसेस वगैरह उसमें हिसाब से बनाए, तो हमारे पास जितने भी वेयरहाउस पड़े हैं होते हैं, बाकी जो मटेरियल रखता है वो डेपो बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, तो उसके अंदर रहता है अभी भी इंडिया के अंदर। ओके, सो दिस जस्ट अ स्मॉल फैक्ट ऑफ द मैटर, आप उसको